سلامی کا خوبصورت انداز یوم پاکستان پریڈ کے پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر اظہر یاسین سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جن کے عقب میں سلامی کے چبوترے پر موجود ہے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی علم بردار دستہ، جس کی قیادت میجر نور الامین کر رہے ہیں۔ تینوں مسلح افواج پر مشتمل یہ باوقار دستہ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ علم بردار دستے کے عقب میں الصابر بٹالین 32 پنجاب ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد طالب 32 پنجابیز کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپریشن راہ نجات کی اولین بٹالین 32 پنجاب ریجمنٹ، اس ریجمنٹ کے 90 بہادر سپوتوں نے اپنے خون سے وطن کی آبیاری کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان آرمی کی نمائندگی کا اعزاز حاصل۔ عزم و ہمت کی پہچان جرار ریجمنٹ کے جوان 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ، اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد عابد کر رہے ہیں۔ وزیرستان اور سوات کے ہیروز، ان کی آنکھوں میں جو خواب ہے سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہرے نایاب ہیں سب وطن کے ہیں، ان کے جذبے نایاب ہیں سب وطن کے ہیں۔ جاں باز اول کا نصب العین لیے فخر کشمیر 26 آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سردار محمد کلیم خان کر رہے ہیں۔ اس ریجمنٹ کے 84 بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی۔ کوئی سرور، کوئی بھٹی، کوئی شبیر یہاں، لالک جان کی دہکتی ہوئی شمشیر یہاں۔ طوفانی بٹالین 20 سندھ ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد مسعود الرحمان اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس ریجمنٹ کے 43 سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سیاچن اور آپریشن خیبر 4 طوفانی بٹالین کی جرت اور بہادری کے امین ہیں۔ گلگت بلتستان کی پہچان برق دم بٹالین 9 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبد الحفیظ کر رہے ہیں۔ سیاچن، شکما اور کیل سیکٹر برق دم بٹالین کی سنہری تاریخ کے گواہ ہیں۔ ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجمنٹ آف دی آرمی، برق دم بٹالین، مارکہ دوارکا کے ہیروز، پاک بحریہ کے جوان، اس دستے کی قیادت کمانڈر محمد شاہد اقبال تنولی کر رہے ہیں۔ سطح آب، زیر آب، فضا اور زمین پر بیک وقت ان کی پیشہ ورانہ مہارت۔ پاک بحریہ کے اس دستے میں سکھ آفیسر لیفٹیننٹ پون سنگھ نمایاں۔ پاک بحریہ کے دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے، جس کے عقب میں پاک فضاؤں کے نگہبان، ستاروں کے رازدان، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کا دستہ ونگ کمانڈر محمد ایاز خان اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ 27 فروری 2019 پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے 2 جہاز گرا کر ایک مرتبہ پھر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ لڑاکا طیاروں، مہلک میزائلوں اور جدید ریڈار سے لیس پاک فضائیہ کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی دیتا ہوں۔ مونگا دا خیبر زلمی، پختوزہ مونگا شان دے، پاک افغان سرحد کے نگہبان، فرنٹیئر کور کے جوان، لیفٹیننٹ کرنل مناظر حسین منہاس فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فرنٹیئر کور نے جرت اور بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں۔ فرنٹیئر کور کے 950 سے زائد افسران اور جوانوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پا لڑ تک، پا بر تک، پا غر تک۔ انسپیکٹر جنرل صفت غیور شہید کی
शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज पासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोखर कर रहे हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और खासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने क़याम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद समाने ज़र्ब-ओ-हर्ब से लैस हमारी मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन की जमानत है। फर्म एंड कर्टियस का नस्ब-उल-ऐन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला ढांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन हजरात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. पाकिस्तान आर्मी में 16 ब्रास बैंड और 248 पाइप बैंड मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड का, पाकिस्तान का सब जिलानी परचम लहराता हुआ और जिसके बिल्कुल सामने कायद आजम और अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट अवेदा थी। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक 8 लाइट कमांडो बटालियन से है, अल फुरसान, जिनका नस्ब-उल-ऐन। ये दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमात सर अंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जाबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जाबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल खमसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जाबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जां बाजम सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। जान मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका फसीलों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवास टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज
हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान बढ़िया परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जिसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीनो हजरात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के दस्ते में सबसे पहले VT-4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT-4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT-4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT-4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT-4 के अकब में the main battle tank of Armored Corps, with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की मायनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्ज, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम नियाजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APC, जिनका ताल्लुक 226 आजाद कश्मीर हैड कंपनी से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता, इज्जतो इकबाल, जिनका नस्ब बुलंद। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद
آج کی تقریب کے مہمان خصوصی آرٹلری کے دستے میں سب سے پہلے M109A2 155 ملی میٹر گنز کا دستہ، 23 کلومیٹر رینج کی حامل یہ گنز جن کا تعلق دا ڈیشنگ 16 SP میڈیم ریجمنٹ سے ہے۔ کیپٹن محمد ذوالقرنین اس کالم کی قیادت کر رہے ہیں۔ M109A2 155 ملی میٹر گنز کے بعد M110A2 8 انچ ہووٹزر گن کا دستہ، 30 کلومیٹر رینج کی حامل یہ گنز جن کا تعلق 33 SP ہیوی ریجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ محمد شاہزیب خان اس کالم کی قیادت کر رہے ہیں۔ توپ خانے کے دستے میں M198 155 ملی میٹر ہووٹزر 30 کلومیٹر رینج کی حامل ان گنز کا تعلق 11 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری سے ہے۔ اس کالم کی قیادت کیپٹن مزمل کر رہے ہیں۔ توپ خانے کے دستے میں اس وقت 130 ملی میٹر میڈیم گنز کا دستہ 27 کلومیٹر رینج کی حامل ان گنز کا تعلق 153 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری سے ہے۔ اس کالم کی قیادت کیپٹن ذیشان حیدر کر رہے ہیں، جس کے بائیں جانے موجود ہے فائر فائنڈر ریڈار SLC-2 جس کا تعلق 37 لوکیٹنگ ریجمنٹ آرٹلری سے۔ توپ خانے کے دستے کے بعد پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عنایت الرحمان کیانی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 136 ریڈار کنٹرول گن ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے۔ اس ریجمنٹ نے حال ہی میں البیضا مشقوں میں 11 تربیتی ڈرونز گرا کر اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ ایئر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز، میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں۔ 1965، 1971 اور دیگر جنگوں میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس نے دشمن کے 71 جنگی جہازوں کو گرایا۔ آرمڈ کور اور اس کے بعد اب باری APC ماؤنٹیڈ QW-18 میزائل کا دستہ جس کا تعلق 144 لائٹ ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے۔ APC ماؤنٹیڈ QW-18 میزائل کے بعد RBS-70 جراف ریڈار جن کا تعلق 20 لائٹ ایئر ڈیفنس دا اسکائی سیویئر ریجمنٹ سے ہے۔ دنیا کی بہترین ایئر ڈیفنس گنز، اورلکن گنز اور اسکائی گارڈ ریڈار کا دستہ جس کا تعلق دا کلر 97 ریڈار کنٹرول گن ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے۔ اسکائی گارڈ ریڈار 17 کلومیٹر تک ہدف کو تلاش اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اورلکن گنز ڈرونز اور میزائلز کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اورلکن گنز کے بعد ڈیجیٹائز سرویلنس کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ایئر ڈیفنس کمانڈ پوسٹ جس کا تعلق 123 سرویلنس کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے، جس کے عقب میں FM-90 ویپن سسٹم، میزائلوں اور ٹریکنگ ریڈار پر مشتمل FM-90 دشمن کے لڑاکا جہازوں کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ احمد دانیال عالم کر رہے ہیں۔ FM-90 کے عقب میں LY-80 ویپن سسٹم، ریڈی ٹو فائر جنگی جہاز، کروز میزائل اور UAVs کو نشانہ بنانے کی اہلیت، 40 کلومیٹر رینج کا حامل یہ ویپن سسٹم 50,000 فٹ کی بلندی پر بیک وقت 6 ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کالم کی قیادت میجر محمد ذوالکفل باقر کر رہے ہیں۔ کمانڈ وہیکل، سرویلنس، گائیڈنس اور فائرنگ وہیکل LY-80 ویپن سسٹم میں شامل ہیں۔ بیک وقت 6 ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت۔ LY-80 ویپن سسٹم کے عقب میں روح رواں حرکت و برکت عسکریاں، کور آف انجینئرز لیفٹیننٹ کرنل ارسلان نبیل شاہد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں، جن کا تعلق 314 اسالٹ انجینئرز بٹالین سے ہے۔
जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, इसकी कुल लंबाई 100 मीटर है। पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवां रखता है। खुद कार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमायां हैं, जिनके जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़मानाए अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिलातातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के जरिए महफूज और मौसर राब्ते का जरिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले DCS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड
फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक़्त मुताबिक तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके अकब में पाक फिजाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फिजाइया के सरबराह जमाना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुजाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल मुस्तफवी रेजिमेंट से है। SPD के दस्ते में जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बगैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवाज करता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल 1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपनी परवाज के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है।
कायसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख्त के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास में सबसे पहले अशदर शोला फिशा फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। जनरल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक फेनिक हेलीकॉप्टर से है। लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान ज़िया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ महाज पर पेश रहे। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मनेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलड़ा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होती हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल
खयाम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खसूसियात में फौरी नक्लो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयां शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर्स के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के ज़ूलो नाइनर्स स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत। एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस। कमांडर तलहा मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के अकब में सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के सबूते की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद तरीन एवियोनिक्स, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। और इस वक्त आप एक दिलचस्प मुजाहरा देख रहे हैं, जिसमें स्पीड टेक्निक का मुजाहरा किया जा रहा है। SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। सफेद रंग के हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1999 में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस गोताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रैगमैन। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर्स को उतारा नहीं जा सकता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अबान और मेजर रिहान बुखारी कर रहे हैं। और एविएशन फ्लाई पास के बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज जहां प्राइड ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और ये गुलदस्ता है, इन्हीं में से एक रिदा ज़ाहिरा नकवी, वो बासलाहियत और पुरअज़म पाकिस्तानी खातून है जो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला होने के बावजूद आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बनाई। और इन्हीं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में फरजाना बीबी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पोलियो का शिकार हुई, लेकिन इस वक्त खुद पोलियो के लिए घर घर डोर टू डोर वो कैंपेन कर रही हैं ताकि कोई और बच्चा पोलियो का शिकार न हो। ये खूबसूरत रंग है जो पाकिस्तान के जो यहाँ आज मौजूद है। Helicopter fly past. It's time to take you towards some action, thrill and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of the world. And you are hearing this from squadron leader Hassan Malik and squadron leader Hassan Jalal. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सिपाही सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फिज़ाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है और वो ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू में दाखिल होता हुआ, Ladies and gentlemen, JF-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू।
फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूँ, के शाहीने शहे लौलाक है तू. Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called half Cuban 8. ख़वातीनो हज़रात, अब पायलट आपके सामने जो मुज़ाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबन 8 कहा जाता है. फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है. पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फिजाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है. और एक मर्तबा फिर आपके सामने हाफ क्यूबन 8 का दिलकश मुजाहिरा. हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए. Ladies and gentlemen, after the exotic display of half Cuban 8, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरान कुन मुजाहिरे के लिए परेड वेन्यू के बाएं जाने से विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज और ये देखिए मौत और जीज के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक खूबसूरत मुजाहिरा. That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of PAF pilots. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है. थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं. इस मुजाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा. इस मुजाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिशे सकल की जद में होता है. और ये देखिए थंडर टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा. Ladies and gentlemen, after the thunder turn, Wing Commander Mudassir Riaz will now reposition his aircraft to approach from the left side of the venue for the next maneuver, the barrel roll. Barrel roll is a maneuver in which the aircraft defines a circular flight path around an imaginary point lying horizontally. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीनो हज़रात, JF-17 जहां आवाज से दुगनी रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, वहीं ये तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखे हुए अपनी परवाज जारी रख रहा है. इस मुजाहिरे में तैयारा अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता है और इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर अमूदी सिम्त में जाते हुए मसल क्लाइंब का ये खूबसूरत मुजाहिरा. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the exotic display of muscle climb, and now the pilot is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. निगाहें मरकूज रखिए पाक फिजाइया के फख्र, पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर पर. वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम,
इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। पाक फिजाइया की शान सदर पाकिस्तान को सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का रवायती अंदाज। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं सलामी के चबूतरे पर, और हमारे गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं, जिनमें बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ खुसूसी तौर पर आज यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर दिफा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मौजूद ख्वातीनो हजरात, ये सफर अभी थमा नहीं, ये शहर अभी टूटा नहीं। JF-17 के इस पुरवकार मुजाहिरे के बाद परेड वेन्यू की जानिब गामजन है वो तैयारा जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आपस के बाहमी इत्तेहाद को मजीद परवान चढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सोलो तुर्क। और अब माइक पर मेरा साथ देंगे सोलो तुर्क के कमेंटेटर कैप्टन मुस्तफा बिरजान। सलाम अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम कैप्टन मुस्तफा बिरजान बिचर और मैं आपसे उर्दू में भी बात करूंगा। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मेरी तरफ से मदरात। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आप सबके साथ हम आए हैं लेकर सोलो तुर्क। हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। F-16 demo team, supporter of peace, expression of power. Now, our brave pilot Captain Don will show you his best. और परेड वेन्यू के दाएं जानिब से फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। बहुत खुश है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तुर्की की जनाब से आप सबको खुश आमदीद। The first maneuver consists of two separate maneuvers called pitchback and sliceback, commonly used in airfights, used for gaining altitude and energy. ख्वातीनो हजरात, जिनको सिर्फ तस्वीरों में देखा वो आज हम सब के रूबरू अपनी परवाज का जादू जगाने और पाकिस्तान की आवाम को यौम पाकिस्तान का तोहफा देने के लिए बजाते खुद मौजूद हैं सोलो तुर्क। और एक दिलकश अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का फिजा में प्लेयर्स बिखेरते हुए परेड वेन्यू के ऊपर मुख्तसर से दायरे में घूमते। अल्लामा इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा गर बहारों की चट्टानों में। Solo Turk is coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush. At the end of his maneuver, he will be at 300 feet to perform the Falcon turn under a positive 80 force. ख्वातीनो हजरात, 7 दहाइयों पर मुहित पाक तुर्क दोस्ती का ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद हमारे तुर्क भाई हर तरह की रुकावट अबूर कर मीलों की मुसाफत तय करके यौम पाकिस्तान की खुशियों में पाकिस्तानी कौम के साथ शामिल होने के लिए आन पहुंचे हैं। सोलो तुर्क इस वक्त आपके सामने लूप का मुजाहिरा पेश कर रहा है, जिसमें फिजा में एक दायरा मुकम्मल करने के बाद वो अपने अगले मुजाहिरे की जानिब बढ़ जाएगा।
دیکھ سکتے ہیں سولو ترک کے مظاہرے کا دلکش انداز. چکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ کے اوپر گھومتے ہوئے ایک خوبصورت انداز میں اپنا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے پاکستانی قوم کے شانہ بشانہ کھڑے اس وقت پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے. Ladies and gentlemen, this maneuver is unique and belongs to Solo Turk only. With this Solo Turk roll, you will witness aesthetic in 3 dimensions. خواتین و حضرات، کئی بین الاقوامی مقابلوں میں اپنے حریفوں کو پچھاڑ کر اپنے نام کا جھنڈا گاڑنے والے، ہر طرح کے خطروں کو بالائے طاق رکھ کر ہوا کے دوش پر پرواز کرنے والے اور سولو ایروبیٹکس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جانے والے سولو ترک اس وقت فضا میں گھومنے کا ایک خوبصورت انداز. Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position and at a low altitude, which causes the blood in the body to run through the head. Then it will circle around itself while it's in front of you. خواتین و حضرات، کیپٹن سردار دوان اس وقت اپنے آپ کو اپنے اگلے مظاہرے کے لیے تیار کر رہے ہیں. پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے آپ کے سامنے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ پیش کریں گے. With a superb roll rate of F-16, Solo Turk will now perform aileron rolls. There are many details to say, but I don't want to make this performance less meaningful. So, witness this fantastic show with full of adrenaline. Today, he is not only promoting excellence, but also excitement for you. رفتار، جوش، جنون اور پیشہ ورانہ مہارت کا حسین امتزاج اس وقت سولو ترک کی شاندار مظاہرے میں آپ کی نگاہوں کے عین سامنے. پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے آپ کے سامنے ایلرون رول کا مظاہرہ پیش کرتے یہ سولو ترک. Solo Turk will now pass in front of you at 100 feet and at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of sound, calling out to spotters, catch me if you can. Astonishing, you will watch him at a trail. He will literally cut the air, but not with his hand, with his wing, of course. And what can I say more? خواتین و حضرات، اس وقت سولو ترک آپ کے سامنے ایک تیز رفتار پاس کا مظاہرہ پیش کرے گا. اور خواتین و حضرات، وینیو کی بائیک جانب سے آتا ہوا آپ کے اور ہمارے جان سولو ترک. پاکستان اور ترکی کے قومی پرچموں کے مابین مماثلت اس بات کی غماز ہے کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر تاریخی، مذہبی اور ثقافتی ورثہ رکھتے ہیں جو دونوں اقوام کے لیے باعث فخر ہے. Solo Turk is going to come straight ahead of you from perform vertical climb and descent maneuver combined by rolls. So far, so good. Get ready for absolute adrenaline rush. Months of preparation, thousands of training hours, skills, speed and perfect talent are condensed in this maneuver. خواتین و حضرات، پاکستان اور ترکی کے آہنی تعلق کا اندازہ دونوں ملکوں میں استوار دفاعی، تجارتی اور اخلاقی رابطوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. یہ تعلق ایک اٹوٹ رشتے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. دل پاکستان، جان جان پاکستان. Dil Pakistan! جان پاکستان. حاضرین کی ایک کثیر تعداد سولو ترک کے اس
مظاہرے سے محظوظ ہوتے ہوئے